So anyone knows about the profit and loss? What is profit first? What is a profit? Yes, sir. What is Sir, profit? sir, profit. Sir, we gain a profit when sir we gain a profit when we have a CP and at what selling price we have bought it, we sell it at a more price. I don't understand actually. Can you repeat once again? Sir, Yes, sir. Sir, if we buy anything at some cost and we sell it at some more cost, then the difference between the both is known as profit. Okay, we make the money. Yes, sir. Okay, anyone else? Yes, sir, I say. Yeah, please go ahead. Sir, profit is insecure when the cost price is less than the selling price. Cost price is less than the selling price. Yeah, that's also good that we make the profit by that. We make the money. So this is very simple that we just make the money. That's it. So make money. Any buy any business. So that is a profit. So profit is like that. You have some product. यानी कि मान लेते हैं आपने भैंस पता है आपको क्या होती है? You know भैंस Yes, sir. जिसके दो सींग होते हैं, चार पैर होते हैं. Yes, Right? sir. So that is like buffalo. So buffalo कुछ कैसी होती है? चार पैर होते हैं उसके. Like that. Right? एक बड़ा सा पेट होता है. And एक पूंछ भी होती है. यहाँ पे मुंह भी होता है. Right? Like that. सींग भी होता है. दो. Not so good भैंस. आईज भी होती हैं इसके. तो हुआ क्या कि एक बंदे ने 85,000 की एक भैंस खरीदी. कितने की? 85,000 रुपीज की. And he bought it on this one. Bought and sold at how many? 95,000 रुपए में उसने बेच दिया. करेक्ट. यानी कि 85,000 में खरीदा और 95 में बेच दिया. ऑब्वियसली सो कुछ डिफरेंस आया. ही सेव्ड द मनी 10,000, राइट? Yes, sir. So that's how is the profit, that he saved some money. So that is also saving. In fact, we can say that we saved something. So that is our profit. While if that guy by chance, if he sell that buffalo at 80,000 due to some issues, suppose because जब उसने परचेज किया था तब वो 10 लीटर दूध देती थी. ठीक है, इज गिविंग 10 लीटर्स. और बाद में उसने कुछ दिन उसको दूध निकालता रहा उसका. एंड आफ्टर दैट is giving 6 liters only. So he just sold it on the 80,000. Correct? So now what is happening? He is going to the loss. Loss of how much? 5,000. 5,000. Also 5,000. So ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे मान लेते हैं कि कुछ दिन बाद, मान लेते हैं कि आफ्टर 5 years, सो कुछ कॉस्टिंग ही कुछ बढ़ गई. हो सकता है, राइट? सो दैट ऑल्सो बी द केस कि दैट ही कुछ दिनों के लिए रखा उसने और 5 साल बाद उसकी कुछ रेट बढ़ गए हों, लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हो बफेलो की, या लोगों को दूध ना मिल रहा हो. सो नाउ द कॉस्ट हैज बिकम 95,000. इन दैट केस ही मेक द profit. So that's how, because depending on the different conditions, the guys are making the profit or loss. So there are different conditions for that one. Okay. So I hope we are clear about the profit and loss. So Yes, sir. So this is just a simple example of this one. So let's take a little complicated and example from the NCERT कि कैसे करते हैं ऐसे questions. ठीक है. So this is just one example कि सोहन bought a second hand refrigerator. एक पुराना रेफ्रिजरेटर था, वो उसने 2500 रुपए में खरीद लिया. ठीक है. So by chance let's take it that was a double door, and double door refrigerator था, तो obviously एक हैंडल ऊपर भी होगा और एक नीचे भी होगा.
and now he just bought it second hand refrigerator. नीचे यहाँ पे stand भी है. Okay, something like that. So now this refrigerator he bought at 2,500 rupees. Then spent 500 rupees on its repair. यानी कि जब उसने खरीदा था तो ये काम नहीं करता था. It was not working. तो अब उसने जो 500 रुपीज थे वो स्पेंड कर दिए किसमें? इसके रिपेयर में, ठीक करने में. सो नाउ इट्स टोटल, इसका जो एक्सपेंडिचर हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर, या यूं कह लें कि टोटल कॉस्ट ऑफ बाइंग जो होगी, टोटल कॉस्ट ऑफ बाय जितने की उसने खरीदा, सो दैट विल बी 2,500, यानी कि जितने की उसने एक्चुअली नॉट वर्किंग रेफ्रिजरेटर लिया, और प्लस उसने 500 रुपीज रिपेयर करने में लगाया. तो टोटल इसका जो इन्वेस्टमेंट हुआ, या इनफैक्ट जितने रुपए लगाए उसने, दैट वाज हाउ मच? 3,000 रुपीज. क्लियर? और जब ये रेफ्रिजरेटर ठीक हो गया, चलने लगा, तो ऑब्वियसली जब काम चीजें सही करने लगती हैं तो देयर आर लॉट ऑफ बायर्स ऑफ दैट वन. कोई भी चाहिए, किसी को भी चाहिए होता है. सो नाउ ही दिस वाज अ स्मार्ट गाय, और उसने क्या किया कि इसको ही सोल्ड एट हाउ मच रुपीज? 3,300 rupees. So now what will be his profit? अच्छा, कैसे पता करेंगे? पहली चीज तो कैसे पता करेंगे दिस इज अ प्रॉफिट और लॉस? बिकॉज देखो अभी यहाँ पे लेना फाइंड हिज लेस लॉस और गेन, राइट? ये कैसे पता करेंगे कि ही मेड अ लॉस और ही जस्ट गेन सम मनी ऑन दैट वन? ये कैसे? Sir, if the cost price is more than the selling price, that means that a person has bought something and by some chances he has sold it for more. So, sir, we get a loss, sir, and vice versa in the profit. Right. So, if the buy is greater than the sell, so that is our profit. Loss, right? And if our buy is less than sell, profit, then it is a profit. यानी कि हमने खरीदा कम का और बेचा ज्यादा का. सीधे से, अगर ये कॉम्प्लिकेटेड सी स्टेटमेंट नहीं समझ में आ रही है तो सीधी सी बात है, समझो कि जब उसने कम का खरीदा और ज्यादा का बेच दिया, देन ही मेड मनी, ही मेड अ प्रॉफिट. एंड इफ अगर उसने कम का खरीदा, सॉरी ये तो हो गया, ज्यादा का खरीदा और कम का बेचा उसने, तो उसको नुकसान हो गया. सो दैट्स क्वाइट सिंपल. एंड इफ यू अंडरस्टैंड दिस ग्रेटर देन लेस देन साइन, देन इट्स वेरी गुड. इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड, देन जस्ट सीधी सी बात है, वी क्वाइट अंडरस्टैंड दैट, राइट? इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए किसी को. है क्या किसी को? No, sir. No. Okay. So total cost of purchase, yeah, total cost minus the selling price. Excuse me, sir. Yeah, go ahead. Sir, I think the answer is coming as 12%. 12%. Okay. Sir, but at last, sir, in CP, sir, what would we take? Sir, 2,500 or 3,000? Percentage पूछा है क्या इसमें? Yes, sir. So Okay, gain percent. Okay. So first thing is that what we got. Oh, what I got put one more zero. So the total profit is how much? 300. ठीक है. So now your question is that we have to calculate the percentage on this 3,000 or this one, right? तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि क्या चीज पहले थी, on which you are calculating, right? पहले सबसे पहला उसने इन्वेस्टमेंट किसने किया? सबसे पहली चीजें स्टार्ट कब हुई? कब स्टार्ट हुई बताएगा कोई? सर जब उसने खरीदा. जब उसने चीजें खरीदी, यानी कि उसने खरीदा एंड he just bought it and repair it. So that was the initial condition. जो कुछ भी होगा percentage, that will calculate on this one only, because this was the basic thing from which it was started. ठीक है. So now we have the profit of 300. Profit of 300. कितने में प्रॉफिट हुआ उसको? इन्वेस्टमेंट कितना किया उसने? How much he invested? He invested the 3,000, right? So out of 3,000 he made this profit. So that's why we have taken this one as a base price. 3,000 नीचे इसलिए because everything is calculated what he has invested.
जो उसने इन्वेस्ट किया उसी पे तो हम परसेंटेज निकालेंगे कि उसने कितना पैसा बनाया जितना उसने पैसा लगाया उसमें। करेक्ट? इसमें डाउट है किसी को? No, No, sir. sir. Okay. No, sir. Okay, good. And for the percentage, we will simply multiply by 100. So this is going to be 10%. So he made the 10% profit. We have to make, or we can say gain. इसमें तो कोई डाउट है क्या? नहीं. Okay, good. So let's take one more example. This is saying that the Meenu bought 2 fans for rupees 1200 each. 2 फैन खरीदे. ठीक है. So there is a one fan. ठीक है. And there's another fan that is having a 4 fans. She sold at a loss of 5% and the other at profit of 10%. Find the selling price of each. ठीक है. तो चलो मैं सी दोनों की जो कॉस्ट है वो 1200 रुपये है. दिस इज ऑल्सो 1200 एंड दिस इज ऑल्सो 1200. सो लेट्स टेक द फर्स्ट वन. ठीक है. फर्स्ट फैन की बात करते हैं. सो दैट वाज हैविंग द cost of 1200. Correct? And now she sold one at a loss of 5%. So firstly हम क्या करते हैं कि इसका जो लॉस है वो निकालते हैं कि लॉस कितना हुआ. So loss will be equals to 5% of 1200. 1200 में इसको 5% लॉस हुआ तो we'll calculate 5% of 1200. So that will be 5 by 100 multiplied by 1200. Correct? And these two zeros cancelled. Sir, 60. That is 60. So he made a loss of 60 rupees. So अगर इसने 60 रुपीज का लॉस हुआ है तो कितने का बेचा होगा इसने? सर 120 का प्रॉफिट. 1200 minus 60 because this is a loss in the first one. So that should be 1140 rupees. ठीक है. Find the selling price of each. तो first one का तो clear हो गया कि that she sold at 1140. अब मैं बात करता हूँ second वाले की. Excuse me, sir. Yeah. Sir, for SP, sir, we also have a formula. Really? Sir, for SP we have a formula. क्या फॉर्मूला होता है? Sir, that SP will always be equal to 100 plus gain into CP upon 100. I like formulas, but I don't like too much actually. Problems क्या होते हैं formulas को याद रखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है because always we have to memorize it कि यार ये फॉर्मूला कैसे रहेगा. तो उससे अच्छा मैं क्या करता हूँ कि that I just understand the concept and then I just manipulate according to our requirement. because आप फॉर्मूला लेके जाते हो थोड़ा सा भी क्वेश्चन ऊपर नीचे होता है तो फॉर्मूला गड़बड़ा जाता है. लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है दैट हाउ टू यूज द थिंग्स एंड हाउ द थिंग्स आर कमिंग तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती है. इसलिए मैं फॉर्मूला बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करता और हो सकता है बुक्स में लिखे भी होते हैं तो मैं अवॉइड कर देता हूँ कि ना बताऊँ. Yes, sir, the formula only helps to do a thing Yeah. fast. या फास्ट बट अभी चलो हम फास्ट नहीं करते हैं. अभी हम थोड़ा सा समझते हैं कि दैट व्हाट आर थिंग्स हैपनिंग. एक बार आप एक्सपर्ट हो जाओगे फिर आप धीरे धीरे अपने आप फास्ट करने लगोगे. ठीक है. So let's take the what selling price, right? So selling price नहीं अभी तो 10% लॉस हुआ है यानी कि sorry profit of 10%. So let's calculate the profit. So profit will be 10% of the cost जितने का उसने खरीदा था. So that was 1200. So in short we can say that is 10 by 100 into 1200. Okay. So these two zeros get cancelled and we get the profit of how much? 120.
Okay, and now let's say calculate the selling price. So selling price will be how much? Sir, 1320. Yeah, cost plus price, sorry profit, यानी कि जो उसने buying cost थी, we can say buying cost plus our profit. तो buying cost थी 1200 and this is a profit, so obviously it will be plus, and this is plus 120, so that is coming as 1320. अब हम देख Sir? Excuse me, sir? yeah tell me. Yes, sir. First, in this, we are first calculating the percentage and then adding it to the CP. Sir, instead we could also do 110 upon 100 into 200. Excuse me, sir. I was saying, sir, that if we get a profit, we assume the CP as 100, and we just add 10% to it. So sir, here it would be 110 upon 100 into 1200. Yeah. So अगर हम इसको ध्यान से देखें तो क्या होगा, टोटल मनी ऑफ बाइंग, यानी कि हमने जो फैन खरीदने में टोटल मनी जो स्पेंड किया वो कितना किया, एक फैन की कॉस्ट थी दैट वाज 1200 एंड वी बॉट हाउ मनी 2, राइट? सो दैट इज बिकम्स एज 2 into 1200, दैट इज 2400. करेक्ट? इसमें किसी को डाउट है क्या? No, sir. No, okay. And we have sold the first fan as 1140 rupees and second fan at 1320. So total money we made after selling. So total money, yeah, total. Sir, 1260. No, 1140 plus 1320. So that will be coming as how much? 0642460. Right? Got it? Yes, sir, now got it. Okay, good. So now obviously we say that the total selling price is 2460 and total buying cost is 2400. And here the total selling price is higher than the buying cost. So obviously it is a profit. So we can say the profit will be equals to selling minus buying. So that will be equals to how much? 2460 minus 2400, and that is coming as how much? 60 rupees. Profit make किसी को problem that how we calculate it? No, sir. Okay, that's quite good. अच्छा, आप अगर इसी में बात करते हैं कि अगर परसेंटेज निकालते हैं that what is the percentage profit, तब क्या करते हैं? What should be the जो पिछली बार क्वेश्चन पूछा था आपने कि नीचे क्या लेंगे? Sir, percentage profit की 100.5 105%. 105. वैसे परसेंटेज तो मैंने सुना है कि 100 के ऊपर नहीं जाता. That's always less than 100. Sir, sometimes we get a percentage over 100 also. कोई एक एग्जांपल बताओ जरा मुझे. सर मैंने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है सर. एक में 200/7 आया था. कभी मार्क्स आपके 100 के ऊपर आए? Anyone got 101% मार्क्स? मिलेगा किसी को? सर नीट हैंडराइटिंग के एक्स्ट्रा 2 मार्क्स मिल जाते हैं. परसेंटेज फिर भी कभी किसी को 101% नहीं दिया होगा उसने. मार्क्स मिल गए होंगे बट स्टिल इट डज नॉट हैपन दैट यू आर गेटिंग 101%. उसको भी उन्होंने कुछ ऐसा जस्टिफाई किया होगा दैट यू विल बी गेटिंग मैक्सिमम 100% ओनली. किसी को मिले 101%? एनीवन? ना जैसे कि कोई भी एक लड़की है तो उसका इनकम है 100% और इंक्रीज हुआ एक साल में 20%, तो हम लोग बोल देते हैं 120% उसका 1 ईयर में इंक्रीज हुआ.
ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको और मॉडिफाइड वे बताता हूँ कि मान लेता हूँ किसी की सैलरी है 1000 रुपीज, ठीक है, सर प्रॉफिट 5% है। प्रॉफिट 5% है, 60/2400, मुझे लग रहा है 2.5 आएगा, फिर से करो। सो 1000 रुपीज मान लेते हैं उसकी सैलरी है, ठीक है। अब हुआ क्या कि उसकी सैलरी बढ़ के हो गई कितनी, 2500। तो अब इसमें क्या करेंगे, जब हम देखें 100 से 2500 अगर सैलरी इंक्रीमेंट होगी तो डिफरेंस कितना हुआ, दैट हैज बिकम्स एज 1500, right? And what was initial was 1000, so that has become 1000, two zeros gets cancelled, and और 100 से multiply करना मैं भूल गया हूँ, so this is 0, and now this becomes as how much, 150%, यानी कि that girl has got an increment of how much, 150%. In such cases we are doing the 150%. तो सिमिलरली हम ऐसा भी हो सकता है नॉर्मली कि जैसे ये हम प्रॉफिट निकाल रहे थे, हो सकता है ये इसने क्या हुआ हो कि 2400 की अभी इन्वेस्टमेंट करी थी इसने 2 फैंस में, राइट। नाउ व्हाट हैपेंस कि इसका डबल करें तो कितना होगा, 4800, दिस इज अवर 100% इंक्रीमेंट, राइट। डबल हो गया, दैट इज इंक्रीमेंट ऑफ 100%। अब बाई चांस क्या होता कि ये 3 टाइम्स हो जाता, यानी कि 7, 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 7200, तो ये कितना परसेंट हो जाता, दिस वुड हैव बीन 200% profit. This is 200% profit. So that's how the things are happening in the more than 100. But these are quite complicated. Don't go for the common understanding. मतलब ऐसी चीजें कहते हैं but actually इनका कुछ मतलब नहीं होता। Always everything is 100 में represent one thing का मतलब है कि the maximum value is always 100। हम 100 के beyond की बात नहीं करेंगे, right? जब भी हम कभी हम कुछ भी बात करेंगे तो ये भी कहेंगे कि दैट मैक्सिमम वैल्यू इज 100। 100 के ऊपर कहने के लिए कह देते हैं बट एक्चुअली दैट इज नॉट जस्टिफाइड, मतलब कह भी देते हैं बट स्टिल वी डू नॉट एग्री विद दैट। ठीक है, क्लियर है या मैं फिर से बताऊं? नहीं क्लियर? सर हम टोटल परसेंटेज को 100% ही ना मानते हैं। राइट, तो टोटल इज ऑलवेज 100%, दैट इज अवर, जो कुछ भी वैल्यू है उसको हम 100 मानते हैं, दैट इज अवर 100। कुछ कंफ्यूजन सा लग रहा है, मुझे लग रहा है लोगों को माइंड में, तभी कुछ सवाल नहीं आ रहे हैं मुझे, अदरवाइज आई एक्सपेक्ट लॉट ऑफ क्वेश्चंस। समझ आ रहा है ना जो मैं कह रहा हूँ, या नहीं समझ आ रहा है किसी को, या एग्री नहीं कर रहे मेरी बात से? सर आ रहे समझ में। Yes, sir. आ रहा है, ओके। एंड यस सर। ठीक है, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो परसेंटेज क्लियर है, मतलब थोड़ा सा परसेंटेज कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है, मतलब समटाइम्स वी गेट ऑलवेज ट्रैप्ड इन दैट वन, तो ध्यान से करना, और स्पेशली प्रॉफिट एंड लॉस, बिकॉज इसमें भी ये भी ध्यान देना होता है कि दैट वी आर मेकिंग द प्रॉफिट और लॉस। देर इज वन मोर टर्म, दैट इज द सेल्स टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स। वैसे ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं, अब हमारे क्या बोलते हैं नए जमाने में ये चीज़ें नहीं रही, बहुत पहले सेल्स टैक्स हुआ करता था, अभी कुछ सालों पहले ये वैट ऐड हुआ था, वैल्यू एडेड टैक्स, दिस इज वैट, and now these both of them are out of the picture and we have introduced the GST। GST का नाम सुना है? यस सर। what Yes, is the sir. what is the full form? Goods and service tax. Goods and service tax। कभी बिल देखा है कोई, बिल जो बन के आता है? यस सर, अब मॉल ट्रेंड्स में ये जीएसटी का ही बिल मिलता है। राइट, तो मुझे पिक्चर दिखाने की जरूरत है, बिकॉज मैंने तो सोचा था कि पिक्चर दिखाऊंगा आपको, सो बट इफ यू हैव सीन द, चलो मैं दिखाई देता हूँ, लेट मी शो यू अ पिक्चर। GST बिल है, images, so let's see this one, let's copy this one, copy image,
बड़ा कर देता हूँ जरा, ठीक है। तो अभी देखोगे तो इसमें इन्होंने ये IGST इंक्लूड कर दिया है, राइट, दिस इज IGST। तो इसमें भी जो GST है दैट इज 9, they have included this one 9, और ऊपर लिखा हुआ है that is in a percentage, so whatever the value we are having rate, ये 586 में से 9% GST ऐड किया उन्होंने, and now GST tax value is 52.74, and that 52.74 is added to this 586, and we got the total cost that is as 638.74, ठीक है, यानी कि 638.74 आपको पे करने पड़ेंगे, करेक्ट। सो उसके बाद फिर ऐड कर नॉर्मल, दैट्स हाउ दिस इज हैपनिंग, ठीक है। अब इसमें भी GST भी होता है, दो टाइप के होते हैं, बिकॉज स्टेट भी, जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट होती है वो भी चार्ज करती है, एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो भी चार्ज करती है। सो उनका भी परसेंटेज होता है कि मान लेते हैं कि टोटल 18% GST है, सो 9% GST इज गोइंग टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड 9% GST इज गोइंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो दैट्स ऑल्सो हैपनिंग इन सम केसेस, not some cases, and always that is always a 50-50%, they are always happy with 50-50। और ये जो GST है दैट इज वेरिंग, कुछ प्रोडक्ट्स में ये 18% है, ठीक है, कुछ में 14% है, कुछ की अलग अलग स्लैब है, कुछ की 4% है, एंड सम ऑफ द वैल्यूज जो GST है उन पे 0 है, कोई भी टैक्स गवर्नमेंट नहीं लेती है कुछ प्रोडक्ट्स में, ठीक है। सो ये स्लैब बनी हुई है, इन्हीं स्लैब में से GST हो रहा है। पहले क्या था, हमारा टैक्स स्ट्रक्चर जो था बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो उसको कॉम्प्लिकेटेड से हटा के दे हैव इंट्रोड्यूस्ड द GST। सिंपल, आपको या तो 18% देना है, या 14% देना है, या 4% या 0%, यू हैव जस्ट दीज स्लैब्स ओनली, ठीक है। कोई डाउट इन GST? आवाज आ रही है मेरी? No, sir, no doubt. नो डाउट, ओके। सो चलो इसको करते हैं, हम इसको वैट की जगह मान लेते हैं कि दिस इज अवर GST, ठीक है। सो GST, Wahida, okay, this question. Wahida bought an air cooler of 33,300, including a tax of 10%. Find the price of an air cooler before GST was added. This is a very good question. इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब उसने बिल फाइनल बनाया, राइट, वी हैव अ बिल, and finally after the tax calculation the total amounts he has paid, that was 3300। obviously अभी मैंने जो बिल देखा इसमें कुछ जो इनिशियल कॉस्ट थी विदाउट टैक्स, दैट वाज विल बी समथिंग, कुछ ही वैल्यू रही होगी। आफ्टर दैट शी हैज पेड सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ द टैक्स, ये 18%, 14% या 4%, बिकॉज ये पहले पुराना क्वेश्चन है, वैट है तो ये कुछ भी वैल्यू आ सकती है, नॉट इन दिस स्लैब ओनली, कुछ भी वैल्यू आ जाएगी, तो ऑब्वियसली देयर विल बी सम परसेंटेज ऑफ टैक्स, एंड देन वी गेट दैट अमाउंट, एंड दैट इज टोटली एडेड टू दिस 3300। तो हमें निकालना है कि ये जो अमाउंट था, ये यहाँ पे वाला, ये कितना अमाउंट था, ठीक है, और टैक्स की वैल्यू दे रखी है दैट इज 10%, दैट दे हैव वी हैव एडेड द 10% टैक्स इन दैट वन, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ कि लेट्स से दैट इनिशियल विदाउट द टैक्स द कॉस्ट वाज X रुपीस, ओके, लेट्स से दैट दैट वाज X, let without tax, yeah, the price of the cooler, let price was rupees X, okay, and obviously we will be having some tax, not some, in fact 10%, तो let's calculate the tax। चलो इसको GST में लिख लेता हूँ फिलहाल, एक्चुअली दैट इज अ वैट, तो GST कितना होगा, 10% ऑफ द प्राइस, जितना उसका प्राइस था, so 10 divided by 100 into X, so that can be written as 0.1X, ठीक है। नाउ दिस ओरिजिनल प्राइस कितना था इसका, X, राइट, एंड वी हैव द टैक्स, हाउ मच, 0.1X, सो इनफैक्ट इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, प्राइस प्लस टैक्स, सो दैट विल बी एक्चुअली अवर सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, यानी कि जो ओरिजिनल प्राइस था, ओरिजिनल, एंड देन वी हैव एंड टैक्स, तो ओरिजिनल प्राइस हमने अज्यूम किया था दैट वाज X,
and tax we have got it as 0.1x, and the selling price we got it as how much? 3300. In fact, that we can also say as a billing price. ये जो वाला वैल्यू, ठीक है? So that can be 1.1x and will be equals to 3300. इसको हम सॉल्व करेंगे तो x will be coming as 3300 divided by 1.1. If you remove the decimal, add 0 above, so 11 3s are this one, so that is getting as how much? 3000. It means that before the tax the price was 3000. Correct? कुछ डाउट है इसमें? Sir, No, sir. Yeah. No, sir. sir, we can also written as x plus x into 10 by 100 equals to 3300. Exactly, we can also do that. तो अच्छा, एक चीज मैं और बताना चाहता था, मैं उस पे आऊंगा जो भी अनुष्का कह रही है. एंड आई थिंक आदिश्री वाज आल्सो सेइंग टू डू सच टाइप ऑफ थिंग्स. काफी दिनों से कह रही है, तो वी हैव काफी दिनों से 2-3 दिन हो गए करते करते, तो हम उसको डिस्कस करते हैं अभी. लेकिन उसके पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जैसे आप ध्यान दो तो जो प्राइस है दैट वाज 300, ठीक है? ओरिजिनल प्राइस जो था, यानी कि जब अपने फैक्ट्री ने निकाला प्रोडक्ट तो उसने बोला कि दैट विल बी ऑफ द 3000. गवर्नमेंट ने बोला कि दैट इफ यू आर सेलिंग द प्रोडक्ट ऑफ रुपीज 3000 then I will take 10% of the tax. So what happening because of this 10%, इसमें 300 रुपीज गवर्नमेंट ने ले लिए. यही होता है, 300 रुपीज गवर्नमेंट के अकाउंट में जाते हैं जो टैक्स होता है, राइट? ऐसा होता है ना, नहीं होता? Sir, होता है. So that's how now what is happening? How much you are paying? You are paying 3300. So what people do, they don't prepare this bill. शॉपकीपर करते हैं, जैसे कुछ क्या करते हैं कि आप अगर मॉल में नहीं जाते हो, रिलायंस ट्रेंड्स में नहीं जाते हो, या मतलब और भी किसी मॉल में नहीं जाते हो, तो क्या होता है कि यू जस्ट डोंट गेट द प्रॉपर बिल. अब प्रॉपर बिल नहीं होता है तो क्या होता है कि ही जस्ट डजंट गिव दिस मनी 300 टू द गवर्नमेंट. ठीक है? ये क्या करता है, ये 300 रुपीज गवर्नमेंट को नहीं देता है, और क्या करता है कि 3000 का प्रोडक्ट आपको बेच देता है 3200 में. आपका फायदा क्या हुआ? दैट यू सेव्ड 100 रुपीज, राइट? आपने 100 रुपए अपने बचा लिए, एंड दुकानदार को क्या हुआ? दैट ही गॉट 200 रुपीज. उसने 200 रुपए अपने बचा लिए, बिकॉज ओरिजिनल प्राइस जो थी, जो उसको फैक्ट्री से मिला था, वो तो सिर्फ मिला था 3000 का. सो ही मेड this 200 as well. So that's why people are not preparing the bill बनाने से बचते हैं. शायद आपने वो कौन सी मूवी आई थी, नायक मूवी आई थी, शायद देखी होगी कुछ लोगों ने, अनिल कपूर की. देखी? नहीं देखी? Yes, sir. देखी ना? तो that's why they say that please सर बहुत बार देखी. राइट. तो अक्सर आती रहती है. सो ही वाज यूज्ड टू से कि सब लोग पक्का बिल बना के बेचिए तो गवर्नमेंट को इनकम होगी. सो ऑब्वियसली इफ यू आर प्रिपेयरिंग द proper bills, then that amount is going to the government. If they are not preparing the proper bills, then the shopkeeper is making money. Obviously you are also saving some of the money, but हाँ, government का पूरा लॉस होता है, उसमें उनको कुछ नहीं मिलता. Now let me clear this one, and we have to make what Anushka was saying, and she was saying that अगर मेरी बैटरी खत्म हो गई, okay, let me turn it. So now what is happening? She was saying that the original price was X, and where we are having the tax of 10%. So 10x divided by 100. So we can say that 0.1x. So our selling price becomes how much? X plus 0.1x. So we can say that 1.1x, and that we simply equivalent to this 3300. ठीक है? यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 3300 and 1.1, that's also coming as 3000. तो अगर आपने थोड़ा सा स्टेप वाइज, जैसे मैंने बताया था आपको, स्लोली आपने समझ के कर रखा है, तो ऑब्वियसली इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. यू कैन डायरेक्टली पुट दिस वैल्यू. आप ये भी नहीं करोगे, सीधे जैसे 10% देखोगे, यू विल पुट हाउ मच x, ओके, 10%, okay, that is 0.1x, and you will add 1.1x and equivalent to 3300, and you get the value of x. Very simple. ठीक है?
लेकिन अगर आपको सीधे सीधे अभी आपने जो मैंने आपको पीछे समझाया वो नहीं किया होता और सीधे सीधे मैं यहाँ पे जंप कर जाता तो अभी आपको समझ ही नहीं आता कि ये 1.1x आए कहाँ थे. आई विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस. सो इट इज ऑलवेज, जब आप बेसिक सीख रहे हो तो आप स्लोली स्लोली चलो. once you do lot of practice and you become smart and you just keep on skipping the steps. कोई डाउट है इसमें? Anyone? No, sir. No. Okay. And No, sir. good. That's great. So we have one example from the exercise. I purchased a hair dryer of 5400 including 8% VAT. Find the price before VAT was added. So this question is very similar to the previous question. तो आप इसको कर सकते हो. मान लेते हैं कि let price before tax was X. Price X. before tax, that was X. अब टैक्स कितना हो जाएगा इसमें? टैक्स विल बी 8% ऑफ दिस वन, यानी कि वी कैन से दैट 8 on 100 into x, or we can say 0.8. 0.8x होगा, 0.08 होगा. It will be 0.08x. Okay, so now if we add both of the amount, यानी कि जो प्राइस था एंड टैक्स था, एंड दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द टोटल बिलिंग प्राइस. सो ऐड कर देते हैं x plus 0.08x, and that becomes as 5400. So 1.08x is equals to 5400, and x becomes as 5400 divided by 1.08. Remove decimal, you get two more zeros here, and we can cancel it by how much? 9 से हो जाएगा क्या? 9 9 9 2 600. Yeah, so I think we have to divide it decimally. 92 divided by 6000. So it goes how many times? 9. करो जरा, डिवाइड करो इसको, देखते हैं कितना आता है. जस्ट डिवाइड इट इन योर नोटबुक. लेट मी टेक द आंसर. कर रहे हो ना, या मैं करूं? सब कर रहे हैं. कर रहे हैं. ओके, गुड. सर ये बहुत पॉइंट में आ रहा है, जैसे कि 65.217 राइट राइट. कैसे आ रहा है? वो मुझे लगा था कि ऐसे आएगा, तभी मैंने ऐसे डिवाइड करके लिखा. कितना आ रहा है आंसर? So वही 652.17. 652.17. कितना आ रहा है? नो सर 65.217. 65.217. मुझे गलत लग रहा है ये 60. और इससे भी ज्यादा है सर. वहाँ पे 8/100 को वहीं पे काट देते हैं ना, तो ज्यादा अच्छा से रहेगा. कहाँ पे ये गलत किया है ना. सॉरी. नो, दिस इज अ मिस्टेक एक्चुअली. दिस इज अ कैलकुलेशन मिस्टेक. आप लोग ध्यान से नहीं देख रहे हो, इसका मतलब है दिस इज अ कैलकुलेशन मिस्टेक हियर. This should become like 5400 divided by 1.08, right? We don't have to do this one. If we remove decimal, we get two zeros. Cancel by 9. 960. 1334. 9 ones are 9. 9 twos are 8. Now we get 5 5.
This becomes as 5,000. भाई मुझे लगा था कि मतलब 8th क्लास में इतनी कॉम्प्लिकेटेड सी कैलकुलेशन देते नहीं है, देखिए वेरी सिंपल, सॉरी 8th क्लास में. सो सो दैट्स हाउ वी गेट ओनली 5,000. ठीक है, कोई डाउट इसमें? No, sir. Okay. So in the next class we will discuss about the compound interest.